فجعلني من خير البيوت ثم خلق الأنفس فجعلني من خير النفوس وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے. اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے. اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا. میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا. تلاطم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو. اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل صد اعزاز و تکریم معزز علماء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، کارکنان سپاہ صحابہ، تاجران شہر، عمائدین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج 29 جون سن 2000 کو آپ حضرات کے اس شہر سناما تحصیل کوٹتو میں سالانہ سیرت النبی، سب کہہ دو بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے موقع پر برادر مکرم جناب قاری محمد یوسف صاحب اور برادرم جناب قاری نور محمد صاحب کے حکم پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. بلند آواز سے آج بڑے عرصے کے بعد سناما شہر میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، حشاش بشاش ہو کر بیٹھیں، دل و دماغ کے دریچوں کو کھول کر چہکتے مہکتے ہوئے چہرے لے کر بیٹھیں، تو میرا بھی موڈ ہے کہ آج کچھ نبی کی شان پہ بولوں. اور میں کہا کرتا ہوں، مجھے آپ کی اس شدت گرمی کا بھی شدید احساس ہے، لیکن جہاں میں کھڑا ہوں اندر یہاں اور بھی زیادہ گرمی ہے، اور پھر بولنے کی جو ایکسٹرا گرمی ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے مزہ تو تب ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. کہا کرتا ہوں کہ نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان باتیں کرنے
دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ زیادہ لمبی چوڑی تھکا دینے والی تقریر بھی نہیں، 1 گھنٹہ آپ کا لوں گا اور نبی کی شان کے انوکھے اور نئے پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دوستو، میری تو ویسے بھی عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز، اپنی گفتگو کی ابتدا سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر منور معمبر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر و مطہر اکمل و احسن اطیب و اشرف افضل و انور مکرم و معظم و محتشم ارفع و اعلیٰ برتر و بالا منور و معمبر و معطر نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں، اس لیے کہ خود خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے کہا کہ میرے پیغمبر، میرے حبیب اور لاڈلے محبوب اور معجبین، میرے اول و آخر ظاہر و باطن و حاشر پیغمبر، میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، یہ عہد و اقرار میثاق و پیمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پہاڑ کے پتھر پر، جس پانی کی لہر پر، جس شبنم کے قطرے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ یہ سامنے آواز کم رکھے، سامنے کی آواز کم رکھے، کانوں میں ٹکراتی ہے، میں نعت خواں نہیں ہوں۔ میرے دوستو، عنوان ہے سیرت النبی، سب کہہ دو۔ دوران تقریر 2 باتوں کا خیال رہے کہ جب بھی میری زبان پر حضور اکرم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو سب نے بے ساختہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میری تقریر کا کوئی جملہ، کوئی پیرا، کوئی سٹیپ، کوئی انداز اچھا لگے اور دل و دماغ کے دروازے پہ دستک دے تو پھر کنڈی کھول کر سبحان اللہ بھی ضرور کہہ دینا بلند آواز سے۔ میں آپ سے بہت زیادہ تھکا پڑا ہوں، آپ اتنا نہیں تھکے ہوئے ہوں گے، کئی راتیں ہو گئی ہیں میں سویا نہیں ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، روزانہ جلسہ، دن کو بھی رات کو بھی، اور متواتر سفر میں ہے، نیند کا وقت ہی نہیں مل رہا، گلا ساتھ ہی نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ مصنوعی چہک اور مہک لے کر تمہارے سامنے آتے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہو جائیں کہ مولوی صاحب تھکے کھڑے ہیں، کیا کہیں گے، ہم تو گرمی میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرا ساتھ دیتے رہنا، جو بات اچھی لگے ریئیکشن کے طور پر سبحان اللہ ضرور کہنا، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، کہیں گے؟ میرے دوستو، جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان اور پیغمبر کی سیرت کے قصائد اور پیغمبر کی سیرت، نبی کی شان اور نبی کی عظمت کی، تو اس کے لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی ایسا خطیب پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں پیغمبر کی شان کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا مقرر اور مبلغ اور واعظ اور مفسر اور محدث اور محقق اور مفسر اور مفکر، کوئی رائٹر، قلمکار، مصنف اور مدرس ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کے شان کو کما حقہ بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن ہر آدمی صرف اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ میرا نام بھی پیغمبر کے مدح ثناؤں کی لسٹ میں آ جائے، میرا نام بھی پیغمبر کی تعریف کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے، بالکل اسی انداز میں کہ جس طرح مصر کے بازار میں جناب یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا اور ایک بڑھیا درمیان میں قطار میں لائن میں اپنے سر پہ کپاس کی گٹھڑی لے کے کھڑی ہے۔ کسی پوچھنے والے جماع نے پوچھا اماں تو کیسے کھڑی ہے، تو اس اماں نے کہا بیٹا میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو کہنے والے جماع نے کہا اماں تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تیری عقل ماری تو نہیں گئی، یوسف تو حسن کا پیکر ہے، ممبا ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، مرکز ہے، یوسف تو حسن کا سراپا ہے، یوسف تو حسینوں کا سردار ہے، قائد ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، امام ہے، سردار ہے۔ وہ اتنا کم قیمت اور سستا نہیں ہے کہ تجھے کپاس کی گٹھڑی کے بدلے مل جائے۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے اپنے گھر کا کام کاج کر، تو یوسف کو نہیں خرید سکتی۔ یہاں تو بڑے بڑے بیوپاری سونا چاندی ہیرے جواہرات اور درہم و دینار لے کے کھڑے ہیں۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پر رو کر کہا کہ بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن یوسف کو چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔
जनाब दानियाल को भी नबूवत मिली, जनाब यूशा को भी नबूवत मिली, जनाब शुएब को भी नबूवत मिली, जनाब उजैर को भी नबूवत मिली, जनाब सालेह को भी नबूवत मिली, जनाब सलेमान को भी नबूवत मिली, जनाब दाऊद को भी नबूवत मिली, जनाब अय्यूब को भी नबूवत मिली, जनाब हूद को भी नबूवत मिली, जनाब लूत को भी नबूवत मिली, जनाब जकरिया को भी नबूवत मिली, जनाब यहया को भी नबूवत मिली, जनाब मूसा को भी नबूवत मिली, जनाब ईसा को भी नबूवत मिली, जनाब याकूब को भी नबूवत मिली, जनाब यूसुफ को भी नबूवत मिली। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने नबूवत दी। लेकिन मेरे कायद मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद सबके तो रहमतुल्लाह वो कहा करते थे कि अल्लाह ने सारी कायनात बनाई इसलिए है कि इस पैगंबर की आमद होनी थी। नबी की विलादत और बेइज्जत और खिलकत के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, सजाई, आबाद की। अगर पैगंबर ने आना ना होता, पूरी कायनात में खुदा कायनात पैदा ही ना करता। अगर उस नबी ने आना ना होता, अल्लाह जमीनें पैदा ना करता। अगर उस पैगंबर ने आना ना होता, अल्लाह आसमानों को बुलंदी ना देता। अगर उस पैगंबर ने आना ना होता, अल्लाह जमीनों को फरोश ना देता। अगर उस पैगंबर ने आना ना होता, अल्लाह आसमानों को बुलंदी ना देता, अल्लाह समंदरों को फरोश न देता, अल्लाह सितारों को जगमगाहट न देता, अल्लाह चांद को ताबानी न देता, अल्लाह सूरज को चमक और दमक न देता, अल्लाह पहाड़ों को इस्तिकलाल न देता, अल्लाह नूरानियत को नूर न देता, अल्लाह बशरियत को असमत न देता, अल्लाह नबियों को नबूवत न देता। ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई उस पैगंबर की वजह से है। और मैं कहा करता हूं कि वो पैगंबर आया तो कैसे आया। उस नबी की आमद के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से इस नबी की आमद के सिलसिले को शुरू किया और आदम अलैहिस्सलाम से पैगंबर अक़दस सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब्बे कायनात ने वो सिलसिला शुरू किया। और हुजूर की आमद का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। वो कैसे शुरू हुआ, आज तुम्हें पैगंबर का मैं वो शजरे नसब बताना चाहता हूं और इंशाअल्लाह अज़ीज यकीन कामिल से कहूंगा कि मेरी कैसेट के बगैर आपने वो शजरे नसब आज तक किसी मौलवी की जुबान से नहीं सुना होगा। आज हलवे की प्लेट पे पला हुआ मुल्ला, आज दूध के फीडरों पे पला हुआ मुल्ला, आज चूरी वाला मजनू मुल्ला वो तुम्हें नबी के इश्क के दावे तो सुनाएगा, लेकिन नबी के नाम और नबी के दादे परदादे के नाम से आगे उसे कोई वाकफियत नहीं है। मुझे मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद ने पैगंबर का नाम भी बताया, नबी का खानदान भी बताया, नबी का सदर नसब भी बताया। आ मैं तुझे बताऊं कि यह नबी पैदा कैसे हुआ। इस नबी की आमद के लिए अल्लाह ने कितने लोगों को पैदा करके उनके सिलसिले नसब को चलाया। तो रब्बे कायनात ने सबसे पहले मिट्टी से जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर जनाबे आदम की पैदाइश के बाद अल्लाह ने उनकी औलाद में जनाबे शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर जनाबे शीस की औलाद में जनाबे अन्नोस पैदा हुए। फिर जनाबे अन्नोस की औलाद में जनाबे कैनान पैदा हुए। फिर जनाबे कैनान की औलाद में जनाबे यारद पैदा हुए। फिर जनाबे यारद की औलाद में जनाबे इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर जनाबे इदरीस की औलाद में उनका बेटा फायद पैदा हुआ। फिर जनाबे फायद की औलाद में उसका बेटा नाहूर पैदा हुआ। फिर नाहूर की औलाद में उसका बेटा आदर पैदा हुआ। फिर आदर की औलाद में जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर इब्राहिम की औलाद में जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर इस्माइल की औलाद में जनाबे कैदार पैदा हुए। फिर कैदार की औलाद में जनाबे नाहस पैदा हुए। फिर नाहस की औलाद में जनाबे जाहिम पैदा हुए। फिर जाहिम की औलाद में जनाबे नाशद पैदा हुए। फिर नाशद की औलाद में जनाबे साबित पैदा हुए। फिर साबित की औलाद में जनाबे सलमान पैदा हुए। फिर सलमान की औलाद में जनाबे जैद पैदा हुए। फिर जैद की औलाद में जनाबे अदनान पैदा हुए। फिर अदनान की औलाद में जनाबे माद पैदा हुए। फिर माद की औलाद में जनाबे नजार पैदा हुए। फिर नजार की औलाद में जनाबे मुदर पैदा हुए। फिर मुदर की औलाद में जनाबे इलियास पैदा हुए। फिर इलियास की औलाद में जनाबे मुद्रका पैदा हुए। फिर मुद्रका की औलाद में जनाबे खुदैमा पैदा हुए। फिर खुदैमा की औलाद में जनाबे कनाना पैदा हुए। फिर कनाना की औलाद में जनाबे नजर पैदा हुए। फिर नजर की औलाद में जनाबे मालिक पैदा हुए। फिर मालिक की औलाद में जनाबे फेहर पैदा हुए। फिर फेहर की औलाद में जनाबे गालिब पैदा हुए। फिर गालिब की औलाद में जनाबे लुवई पैदा हुए। फिर लुवई की औलाद में जनाबे काब पैदा हुए। फिर काब की औलाद में जनाबे मुर्रा पैदा हुए। फिर मुर्रा की औलाद में जनाबे किलाब पैदा हुए। फिर किलाब की औलाद में जनाबे कुसई पैदा हुए। फिर कुसई की औलाद में अब्दे मनाफ पैदा हुए। फिर अब्दे मनाफ की औलाद में जनाबे हाशिम पैदा हुए। फिर हाशिम की औलाद में अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। फिर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में जनाबे अब्दुल्ला पैदा हुए। फिर अब्दुल्ला की औलाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए।
नबी को अपने जैसा कहते हैं। मैं कहता हूं पागल, नबी तेरे और मेरे जैसा कैसे हो सकता है? तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकलता है, मेरा पैगंबर बोले तो नूर की किरणें निकलती हैं। और तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें, लोग कहते हैं उंगली खड़ी की तो हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अल्लाह आसमान के चांद के टुकड़े कर दे। और नबी की सीरत के पहलू इतने हैं कि मैं अगर नबी की सीरत के उन्मानात गिनने पे आऊं तो पूरी बात नहीं गुजर सकती, सारी रात गुजर सकती है, लेकिन नबी की शान की बात नहीं गुजर सकती। इसलिए कि नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि जिसको अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि जिसको अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों की अरवाह के सामने बयान किया। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि जिसको अल्लाह ने सारी कायनात के मलाइक के सामने बयान किया। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि जिसको अल्लाह ने पूरी कायनात की जन्नत की हुरों और गिलमानों के सामने बयान किया। नबी की सीरत का एक पहलू वो भी है कि जिसको अल्लाह ने तौरात और इंजील और ज़बूर और कुरान में बयान किया। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर जब तक जमीन पे नहीं आया, मेरा पैगंबर आया तो जुल्मत नूर में बदल गई। मेरे पैगंबर की सीरत का एक पहलू ये भी है कि ये पैगंबर जब तक जमीन पे नहीं आया, जमीन पे अंधेरा था, मेरा पैगंबर आया तो अंधेरा उजाला बन गया। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर जब तक जमीन पे नहीं आया, जमीन पे गजब था, मेरा पैगंबर आया तो कादिर भी सादिक बन गए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जब तक मेरा पैगंबर जमीन पे नहीं आया, पूरी जमीन पे शिरक के डंके थे, मेरा पैगंबर आया तो तौहीद के डंके बजने लग गए। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर के बारे में जनाबे आमना कहती हैं, जब ये पैगंबर मेरे पेट में आया, मैं पत्थरों पे चलती हूं तो फूल बन के मेरे कदमों का बोसा लेते हैं। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जनाबे आमना कहती हैं, जब ये पैगंबर मेरे बतन अक़दस में आया, मैं अगर बकरियों का रेवड़ चलाती हूं, बकरियां मेरे पीछे सर झुका के अदब से चलती हैं। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जनाबे आमना कहती हैं, जब से ये पैगंबर मेरे पेट में आया, मैं जिस गली से गुजरती हूं खुशबू के महकार पैदा होते हैं। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जनाबे आमना कहती हैं, जब से ये पैगंबर मेरे पेट में आया है, मैं अगर धूप में चलती हूं, आसमान के बादल अपने रहमत बनकर मेरे सर पे साया करते हैं। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे, अल्लाह आसमान के चांद के टुकड़े कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा नबी उंगली का इशारा करे, अल्लाह आसमान का चलता सूरज भी रोक दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे, जमीन के दरख्त जमीन चीर कर मेरे पैगंबर के कदमों के बोसे लेने आए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे तो एक दहका की वो गौ भी कलमा पढ़ती हुई नजर आती है। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर अगर उंगली का इशारा करे, अबू जहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद का कलमा पढ़ते नजर आते हैं। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर जिस गली से गुजर जाए, अल्लाह उस गली में खुशबू के महकार पैदा कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर अगर अपना हाथ मुबारक जुलैबीब के काले चेहरे पे रख दे, अल्लाह उसके चेहरे की स्याही को सफेदी में बदल दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर उम्मे माबद की बीमार बकरी पे आए, अल्लाह उस बीमार बकरी को शफायाब करके थनों को दूध से लबरेज कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर तो आदमियों के खाने पे आए, 1500 सहाबा तो खाए पर खाना फिर भी बच जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का लुआब दहन अगर कड़वे कुएं में चला जाए, अल्लाह उस कड़वे कुएं को भी मीठा कर दे। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का लुआब दहन अगर अबू बकर की एड़ी पे लगे तो जहर खत्म, अली की आंखों पे लगे तो दर्द खत्म। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर ने अगर पानी के प्याले दूध के प्याले को मुंह लगाया तो 70 सहाबा ने पिया पर दूध फिर भी बच जाए। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर पानी के प्याले में चला जाए, अल्लाह उंगलियों से पानी का चश्मे जारी कर दे। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर के पसीने का एक कतरा अगर कोई सहाबी अपने कपड़ों को लगाए तो दुनिया का मुश्क अंबर भी मुकाबला न कर सके। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरे पैगंबर अगर अपने हाथों से आयशा सिद्दीका के तंदूर में रोटी लगाए, सारी रोटियां तो पक जाए मगर उस रोटी से पानी के कतरे टपकते रहे। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर जिस गली से गुजर जाए उस गली में खुशबू अपना बसेरा कर ले। और नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि मेरा पैगंबर अगर रात के अंधेरे में मुस्कुरा पड़े तो तैयबा कायनात की गुमाने वाली सुई भी वापस मिल जाए। और वो नबी तेरे और मेरे जैसा कैसे हो सकता है? और वो पैगंबर तो इतना आला
इतनी तो एवरेज होनी चाहिए आप में, इतनी तो आपका भी स्टैमिना होना चाहिए। हाँ, और मेरे दोस्तों, ये जो कुछ मैंने कहा ये नबी का शान है या नहीं? सारे बोलो, पीछे वाले भी बोल पड़ो, ये नबी का शान है या नहीं? फिर भी अगर कोई फीडरी मुल्ला कहे, फिर भी अगर कोई हलवे फरोश कोई हलवा खोर कहे कि जनाब ये देवबंदी नबी को नहीं मानते, तो मैं तो कहता हूं कि उलमाए देवबंद ने हमें नबी की अजमत का जो सबक पढ़ाया है वो बड़ा अजीम सबक है। पूरी दुनिया में लोग तो नबी का शान बयान करते हैं दौड़े पढ़कर, कसीदे पढ़कर, मरसिये पढ़कर, कवाली की ढोलक की थाप पे डांस करके, लेकिन आओ उलमाए देवबंद का ये शागिर्द तुम्हें खुदा के कुरान के दरवाजे पे ले चलता है और खुदा के कुरान से नबी का शान पूछते हैं और अल्लाह के पैगंबर की सीरत खुदा के कुरान के दरवाजे पे चल के पूछते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में कि जिस तरह तैयबा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पर एक सहाबी रसूल गए और जाकर पूछा, कायनात के मोमिनों की मां, हमें इस पैगंबर का शान तो बताएं, हमें इस पैगंबर का किरदार और अखलाक तो बताएं, हमें इस नबी की खलबत और नबी की जलवत तो बताएं। तो तैयबा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा, काना खुलुकुहुल कुरान, अगर इस नबी का शान पढ़ना चाहते हो फिर आयशा की जुबान की जरूरत नहीं है, फिर हसन की शायरी की जरूरत नहीं है, अगर इस नबी के किरदार को पढ़ना चाहते हो फिर 30 पारों का कुरान पढ़ते जाओ, मोहम्मद मुस्तफा का शान पढ़ते जाओ। और उसी कुरान पे आज हम भी दस्तक देकर पूछते हैं कि कुरान, लोग तो नबी का शान दौड़ों मर्सियों कसीदों, हीर रांझा ससी पुन्नू सोनी माईवाल और रांझना कहकर बयान करते हैं। कुरान तू हमें नबी की सीरत के बारे में कुछ आगाह कर, नबी की सीरत से हमें रोशनास कर। तो नबी के बारे में जब कुरान से सवाल करेंगे, तवज्जो मेरी तरफ, तो कुरान नबी की सीरत के हर सवाल का जवाब देता है। कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू हमें पैगंबर का नाम तो बता, कुरान तू हमें नबी का शान तो बता, कुरान तू हमें पैगंबर का काम तो बता, कुरान तू हमें नबी की नबुव्वत तो बता, कुरान तू हमें नबी की रिसालत तो बता, कुरान तू हमें नबी की शरीयत तो बता, कुरान तू हमें नबी की सुन्नत तो बता, कुरान तू हमें नबी की हिजरत और नबी का मेराज तो बता, कुरान तू हमें नबी की सीरत और सूरत तो बता। तो कुरान हर सवाल का जवाब देता है। आओ कुरान के दरवाजे पे चलें और कुरान से पूछें कि कुरान तू पैगंबर का नाम तो बता। तो कुरान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान तू इस पैगंबर का काम तो बता। कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास कह दिया। कुरान तू इस पैगंबर का शान तो बता। कुरान ने वरफाना लका ज़िक्रा कह दिया। कुरान तू इस नबी की रहमत तो बता। कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह दिया। कुरान तू इस नबी की अज़मत तो बता। कुरान ने वरफाना लका ज़िक्रा कह दिया। कुरान तू इस नबी का अखलाक तो बता। कुरान ने वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कह दिया। कुरान तू इस पैगंबर की यतीमी तो बता। कुरान ने अलम यजिद का यतीमन फ़आवा कह दिया। कुरान तू इस नबी का चेहरा तो बता। कुरान ने वद्दुहा कह दिया। कुरान तू नबी की जुल्फ़ें तो बता। कुरान ने वल्लैल इज़ा सजा कह दिया। कुरान तू नबी की आंखें तो बता। कुरान ने माज़ागल बसरु वमा तग़ा कह दिया। कुरान तू नबी की जबीन तो बता। कुरान ने वल कमर कह दिया। कुरान तू नबी के दांत तो बता। कुरान ने यासीन कह दिया। कुरान तू नबी की जुबान तो बता। कुरान ने इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक कह दिया। कुरान तू नबी की खामोशी तो बता। कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानक कह दिया। कुरान तू नबी का बोलना तो बता। कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा कह दिया। कुरान तू नबी का सीना तो बता। कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कह दिया। कुरान तू नबी की पुश्त तो बता। कुरान नमाज और रोजा और जिंदगी और मौत तो बता। कुरान ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह दिया। कुरान तू पैगंबर की आमद तो बता। कुरान ने रब्बना व बस फीहिम रसूला कह दिया। कुरान तू नबी की आमद और बेसत की अज़मत तो बता। कुरान ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बात फीहिम रसूला कह दिया। कुरान तू नबी की नबुव्वत तो बता। कुरान ने या अय्युहन नबी कह दिया। कुरान तू नबी की रिसालत तो बता। कुरान ने या अय्युहर रसूल कह दिया। कुरान तू नबी की खत्म नबुव्वत तो बता। कुरान ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन कह दिया। कुरान तू नबी की सिफात तो बता। कुरान ने या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा मुबश्शिरन नज़ीरा कह दिया। कुरान तू नबी की बशरियत तो बता। कुरान ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कह दिया। कुरान तू नबी की नबुव्वत का नूर तो बता। कुरान ने बिइज़निही व सिराजम मुनीरा कह दिया। कुरान तू पैगंबर का शहर तो बता। कुरान ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह दिया। कुरान तू नबी के शहर की गलियां तो बता। कुरान ने वहाज़ल बलदल अमीन कह दिया। कुरान तू नबी का ज़माना तो बता। कुरान ने वल असर कह दिया। कुरान तू नबी का कौसर तो बता। कुरान ने इन्ना तैना कल कौसर कह दिया। कुरान तू नबी की नमाज और नबी की कुर्बानी तो बता। कुरान ने फसल्लि लिरब्बिका वन्हर कह दिया। कुरान तू नबी के दुश्मनों का अंजाम तो बता। कुरान ने इन्ना शानिया कौवल अब्तर कह दिया। कुरान तू नबी का ज़माना तो बता। कुरान ने वल असर कह दिया। कुरान तू नबी की नुसरत तो बता। कुरान ने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह कह दिया। कुरान तू नबी की हिजरत तो बता। कुरान ने इज़ा अखरजहुल लज़ीना कफरू सानिय इस्नैन कह दिया। कुरान तू नबी का मेराज तो बता। कुरान ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कह दिया। कुरान तू पैगंबर की रातें तो बता। कुरान ने
بیٹیاں تو بتا. قرآن نے یا ایھا النبی قل ازواجک کا وہ بناتی کہہ دیا. قرآن تو پیغمبر کا سسر ابو بکر تو بتا. قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا. قرآن تو نبی کا سسر عمر تو بتا. قرآن نے شداء علی الکفار کہہ دیا. قرآن تو نبی کا داماد عثمان تو بتا. قرآن نے رحماء بینہم کہہ دیا. قرآن تو نبی کا داماد علی تو بتا. قرآن نے تراہم رکان سجدہ کہہ دیا. قرآن تو نبی کا سالہ امیر معاویہ تو بتا. قرآن نے بیعدی سفرۃ کرام بررہ کہہ دیا. قرآن تو حبشے کا کالا بلال تو بتا. قرآن نے اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا. قرآن تو نبی کی شفاعت تو بتا. قرآن نے ولسوف یؤتیک ربک فترضی کہہ دیا. قرآن تو نبی کا ماضی اور مستقبل تو بتا. قرآن نے وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ دیا. قرآن تو نبی کی فقر و غنا تو بتا. قرآن نے ووجدک عائلا فاغنا کہہ دیا. اے تو دوڑے پڑھتا ہے, تو مرثیے پڑھتا ہے, تو قصیدے پڑھتا ہے, تو قوالیے گاتا ہے, میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں. اے دیوبندی نبی کا شان تو مانتے ہیں لیکن خدا کے قرآن کی زبان میں میں تو کہتا ہوں جب خدا کا قرآن نبوت کا پورا تعارف کراتا ہے, نبی کا چہرہ پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کی زلفیں پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کی آنکھیں پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کے جبین پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کے دانت پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کی زبان پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کا بولنا پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کی خاموشی پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کے ہاتھ پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کا سینہ پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کا مکہ و مدینہ پوچھ تو قرآن بتائے, اور نبی کا دل اور نبی کی پشت پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کا سونا جاگنا پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کی عبادت پوچھ تو قرآن بتائے, اور نبی کی کملی اور چادر پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کی راتیں پوچھ تو قرآن بتائے, نبی کے دن پوچھ تو قرآن بتائے. پھر اوے علماء دیوبند کا ایک ادنا سا شاگرد تجھے دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر نبی کا شان دیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہے, دوڑے چھوڑ, قصیدے چھوڑ, مرثیے چھوڑ, قوالی چھوڑ, ہیر رانجھا سسی پنو سونی ماہیوال اور رانجھنا کے واقعات چھوڑ, خدا کا قرآن پڑھتا جا, محمد کا شان پڑھتا پڑھا, میں نے کوئی قوالی سنائی, میں نے یہ کوئی کچھ کیا, میں نے خدا کا قرآن پڑھا ہے, محمد مصطفیٰ کا شان پڑھا. اور علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو شان دیا وہ ساری کائنات جمع ہو کر بھی اس شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سارے بولو. اور وہ علماء دیوبند, میں تو کہا کرتا ہوں دیوبندیوں تمہیں کروڑوں مبارک, اللہ نے تمہیں اہل حق میں چنا ہے, کہو الحمدللہ. اللہ نے دین کے ہر شعبے کا کام تم سے لیا ہے, اور میں اس دودھ والے ملا سے کہوں گا جو اجرت علی تھانوی سے لے کر حسین احمد مدنی تک, جو قاسم نانوتوی سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری تک, سب پہ کفر کے فتوے لگا کر گستاخ رسول کہتا ہے. میں کہتا ہوں ملا ادھر آ, ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے, تو بھی اپنی تعریف پیش کر, ہم بھی اپنی تعریف پیش کرتے ہیں, تو بھی اپنے شہید پیش کر, ہم بھی اپنے شہید پیش کرتے ہیں, تو بھی اپنے اسیر پیش کر, ہم بھی اپنے اسیر پیش کرتے ہیں. اور میں مانتا ہوں کہ مرے تیرے بھی ہیں, مرے میرے بھی ہیں, چار تیرے بھی ہیں, چار میرے بھی ہیں, روئے تجھ کو بھی ہیں, روئے مجھ کو بھی ہیں, پھول تجھ پہ بھی ہیں, پھول مجھ پہ بھی ہیں. فرق اتنا سا ہے کہ تو دنیا میں جا رہا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. علماء دیوبند جب بھی مرے دین کے نام پر مار کھاتے کھاتے مرے, اور یہ ملا جب بھی مرا مال کھاتے کھاتے مرے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں, توحید والی رگ بھڑکتی ہے, جہاں پہ کفر برداشت نہیں وہاں پہ شرک و بدعت بھی برداشت نہیں. اور وہ علماء دیوبند کہ جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو, دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو کہ دین کے ہر کام کے لیے اللہ نے تمہیں چنا. تاریخ برِ صغیر چلی تو آگے تم تھے, تاریخ آزادی
मुहर्रत चल रही है, रात को भी जलसा, दिन को भी जलसा। आपको मेरा गला शदीद गीला कर रहा होगा, जबरदस्ती बोल रहा हूँ, आंखों में नींद है, गले में गीला है और पेट में नाश्ते के बाद कुछ नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह रात का खाना भी नहीं खाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बावजूद भी कुछ बोल रहा हूँ। तो रात में दीपालपुर में जलसा था, मियां मंजूर भट्टू के शहर में, उखाड़ा दीपालपुर में। तो वहां जब मैंने सीरत नबी के बाद उलमाए देवबंद को खाली अकीदत का सलाम पेश किया तो बड़ा एक खूब नारा लगा। एक नारा तो लगता है ना कि सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद। एक कोई मन चला दीवाना उठा, उसने कहा हलवा बंद खीर बंद देवबंद देवबंद। ये मुल्ला डराता है ना, जिस बात पे उसने नारा लगाया वो बात भी सुनाता चलूं। ये सब्ज मुल्ला, सब्जी फरोश मुल्ला डेशंटीनो, ये डराता है। मैंने इनको एक जगह डेशंटीना कह दिया तो ये नाराज होकर 2-4 बसें भर के एसी साहब के पास चले गए। अपने इलाके का वाकया है। तो एसी साहब ने मुझे फोन पे कहा, अब्बासी साहब आपकी शिकायत है। मैंने कहा जी क्या? कुछ लोग आए हैं, वो कहते हैं अब्बासी साहब ने हमारी तौहीन की है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते जी इन्होंने हमें डेशंटीना कहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल कहा है, मेरे पास दलील है, अगर दलील न दूं तो मैं मुल्जिम हूं, अगर दलील दे जाऊं तो फिर तो बरी हूं। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, इसकी आपके पास क्या दलील है? किस किताब में दलील है? मैंने कहा किताब में नहीं है, मेरी जुबान पे दलील है। तो उन्होंने इकट्ठ कर लिया, मीटिंग बुला ली, 2-3 दिन के बाद वो भी आए, मैं भी आया, बातें शुरू हो गई। बातों बातों में उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें डेशंटीना कहा है। मैंने कहा बिल्कुल कहा है। तो एसी साहब ने कहा जी ये आपने ज्यादती किया, क्यों कहा है? मैंने कहा नहीं, मैंने जो कहा है सच कहा है और मैं उसको दलील देता हूं। उसने कहा क्या दलील है? मैंने कहा जनाब डेशंटीना उसको कहते हैं कि जिसको एक से ज्यादा चैनल लगे। ऐसे है या नहीं? हम टीवी को 1-2 चैनल लगते हैं ना, डेशंटीना को 5-4 चैनल लगते हैं, इससे भी ज्यादा लगते होंगे, बीबीसी है, सीटीवी है, पता नहीं क्या क्या है, हाँ वो चैनल लगते हैं। मैंने कहा एसी साहब इनको भी बहुत सारे चैनल लगते हैं, इसलिए मैंने डेशंटीना कहा कि अगर इनको दूध पीना पड़े तो इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी हंबलियों का चैनल भी लग जाता है, अगर इनको मजलिस के चावल खाने पड़े तो इनको जाफियों का चैनल भी लग जाता है, अगर इनको या अली मदद के नारे लगाने पड़े तो इनको शियों का चैनल भी लग जाता है, अगर इनको किसी बड़े देवबंदी जिम्मेदार की खैरात पे जाना पड़े तो इनको वहां देवबंदियों का चैनल भी लग जाता है। मैंने कहा इनको हनफी का चैनल भी लगा, जाफरी का चैनल भी लगा, हंबली का चैनल भी लगा, देवबंदी का चैनल भी लगा, बरेलवी का चैनल भी लगा। जब इनको 5 चैनल लग गए, डेशंटीना बने या ना? सारे खामोश। अब इसका जवाब तो कोई नहीं था। तो मेरे दोस्तों, वो मुल्ला कौम को क्या कहेगा? कहेगा, डराएगा कि जनाब देवबंदी मौलवी की तकरीर नहीं सुननी। वो मुरीद पूछेगा क्यों मौलवी साहब? कहेगा अगर देवबंदी मौलवी की तकरीर सुन ली तो 40 दिन ईमान नहीं रहेगा। और मैं उसके जवाब में कहा करता हूं, मुल्ला जी बड़ा चालाक है तू, तुझे पता है कि अगर इसने किसी सच्चे आशिक रसूल देवबंदी की जुबान से नबी का शान सुन लिया तो इसका ईमान तो डबल हो जाएगा, पर मुल्ला के पेट का सामान नहीं रहेगा। ईमान तो रहेगा पर इसके पेट का सामान, जुमरात की रोटी, कल तीजा सादा 40वां वरीना बरसी, ये नहीं रहेंगे। इसलिए कहता हूं कि ईमान तो डबल होता है लेकिन इसके पेट का सामान वो खत्म होता है। इसलिए डराता है कि जनाब देवबंदी की तकरीर नहीं सुननी। मुझे बताओ, मैंने जितनी देर नबी का शान सुनाया, मैंने खुदा के कुरान और नबी के फरमान के अलावा कोई बात की? सारे बोल। लेकिन अगर उधर चले जाओ तो कभी नबी को रांझना कहेगा, कभी नबी को माही कहेगा, माहीवाल कहेगा, कभी नबी को पुनल कहेगा। हाँ, ये नबी की सीरत बयान हो रही है। लेकिन मैं कहता हूं, आओ अगर नबी के शान को बयान भी करना है तो फिर खुदा के कुरान की ज़बान में बयान करो। ये बात ठीक है या गलत है? और उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने उलमाए देवबंद को चुना और मुंतखब किया दीन के हर अच्छे काम के लिए। उलमाए देवबंद ने जितनी कुर्बानियां दी, अगर ये उसका 1/4 क्वार्टर, चौथा हिस्सा भी पेश करें तो मैं इनके कदम चूमूंगा। लेकिन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मैं पेश कर सकता हूं कि लाहौर के माल रोड के जो 10,000 शहीद खत्म नबूवत के लिए हुए थे वो कौन थे। मैं पेश कर सकता हूं कि जो माल्टा के असीर बने थे वो कौन थे। मैं पेश कर सकता हूं जो कराची के खालिद दीन हाल के कटहरे में कफन बांध के गए थे वो कौन थे। मैं पेश कर सकता हूं जिसने 11 बरस तक जेल की चक्की पीसी वो अताउल्लाह शाह बुखारी कौन था। मैं पेश कर सकता हूं कि जो सख्त सर्दी दिसंबर की रातों में अलिफ नंगा होकर बर्फ के गिलाफों पे लेटा रहा लेकिन मिर्जाई के खिलाफ बात करना न छोड़ी वो अहमद अली लाहौरी कौन था। मैं पेश कर सकता हूं कि जिसने नबी के सहाबा और अज़वाज की अज़मत के लिए अपने सीने पे कलाशनकोव का ब्रेस्ट बर्दाश्त करके जंग की गलियों में खून बहाया वो हक नवाज कौन था। मैं पेश कर सकता हूं कि जिसने लाहौर के
कौन था? और मैं पेश कर सकता हूं जिसने इस्लामाबाद के माल रोड पर, मर्री रोड पर अपना महकता फूल और अपनी जवानी कुर्बान की। वो शुएब नदीम कौन था? मैं तुझे 7 बरस के आसिफ नदीम शहीद से लेकर नौजवान 28 बरस के शुएब नदीम तक, फिर उसके बाद अमीर अजीमत जैसा जवान, जियाउर रहमान फारूकी जैसा जवान, इसार अल कासमी जैसा जवान से लेकर सैयद सादिक हुसैन शाह जैसे 80 साल बुजुर्ग तक मैं अपना बचपन दिखा सकता हूं, जवानी दिखा सकता हूं, बुढ़ापा दिखा सकता हूं। हमने गर्दनें कटाई है मगर गर्दन झुकाई नहीं। किसी एक ने गर्दन झुकाई? सारे बोलो, किसी एक ने? अगर ये मुल्ला होता, ये तो एक दुर्रे के सामने कह देता, भाई बाप आई एम वेरी सॉरी, आज के बाद मेरे बाप की तौबा, मैं हलवा खाता रहूंगा, आपको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो सिपाही साहबा के कारकुन थे। सिपाही साहबा से इख्तिलाफ राय रखने वालों, सिपाही साहबा की पॉलिसी को सख्त कहकर ठुकराने वालों, सिपाही साहबा के काम में मुख्तलिफ किस्म की कमी कोताहियां और उनकी गलतियां निकालने वालों, सिपाही साहबा को यह क्रेडिट जाता है कि सिपाही साहबा ने कल जो नौजवान टीवी, वीसीआर और डिश की जीनत था, सिपाही साहबा ने उसको वीसीआर, टीवी और सिनेमा से उठाकर सिद्दीक का नौकर बना दिया। ये क्रेडिट सिपाही साहबा को जाता है कि कल तक जो नौजवान सियासी लीडरों के नारे लगाता था, कल तक जो नौजवान क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के मैचों में अपने दिन रात जाया करता था, आज हमने उस नौजवान को सिद्दीक और फारूक का नौकर बना दिया है। ये क्रेडिट तो मानो न मानो हक नवाज के खून को जाता है। और बताओ वो कौन सा जुल्म है जो सिपाही साहबा के कायदीन ने और कारकुनों ने बर्दाश्त नहीं किया? वो कौन सा सितम है जो हमने हंस के नहीं सहा? बताओ, क्या वो हाफिज याह्या शहीद तुम्हें भूल गया महसी का, कि जिसको 15 दिन तक उल्टा लटका कर नंगा करके मारा गया, और जब वो बेहोश होकर पानी मांगता तो उसके मुंह में पेशाब किया जाता? बताओ ये कुर्बानियां किसने दी है? सिपाही साहबा ने। क्या तुम्हें वो भूल गए कि सिपाही साहबा के बेगुनाह कारकुनों को पुलिस मुकाबले में शहीद कर दिया गया? क्या तुम वो भूल गए कि सिपाही साहबा के कारकुनों के वजूदों में ड्रिल मशीनों से सुराख किए गए? क्या तुम वो भूल गए कि सिपाही साहबा के कारकुनों की आंखों में मर्चे डालकर ऊपर पट्टी बांध दी गई? क्या तुम ये भूल गए कि सिपाही साहबा के कारकुनों को अलग नंगा करके बिजली की स्त्रियों से दागा गया? क्या तुम ये भूल गए कि सिपाही साहबा के कारकुनों के हाथों और पांवों के नाखून उखाड़े गए? क्या तुम ये भूल गए कि सिपाही साहबा के कारकुनों और कायदीन को लोहे की कुर्सियों पर बिठाकर बिजली के करंट लगाए गए? क्या तुम ये भूल गए कि सिपाही साहबा के बेगुनाह कारकुनों को सजाए मौत का ऐलान करके आज तक कराची की जेल में पाबंद सलासल किया हुआ है? क्या तुम भूल गए कि हमारा नौजवान सिपाही साहबा पंजाब का सेक्रेटरी जनरल महमूद इकबाल 5 बरस से चंद महीने शादी को हुए थे, शादी के बाद से गिरफ्तार किया, 5 बरस से ज्यादा का अरसा हो गया, आज भी वो जेल में पड़ा है? क्या तुम भूल गए कि 1000 के करीब सिपाही साहबा के कायदीन, उलमा और कारकुन जामे शहादत नोश कर चुके हैं, लेकिन किसी एक ने न तो हुकूमत से माफी मांगी, न अपनी गर्दन झुकाई। हम सर कटाते रहे, हथकड़ियां पहनते रहे, बेड़ियां पहनते रहे, सलाखों को चूमते रहे, तख्तेदार को चूमते रहे, लेकिन हमने किसी के सामने गर्दन झुकाकर उलमाए देवबंद की तारीफ को दागदार नहीं होने दिया। और इसलिए तो किसी ने कहा था कि अरे ये शाख तमन्ना अभी चली तो नहीं, और तभी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, चपा की देख पे गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। बताओ किसी एक की गर्दन झुकी? मौलाना हक नवाज से लेकर शुएब नदीम तक, आसिफ नदीम से लेकर सैयद सादिक हुसैन शाह तक, अब्दुल समद आजाद से लेकर मुख्तार सियाल तक, रशीद मदनी से लेकर कारी हुजैफा तक, किसी एक की गर्दन झुकी? नहीं झुकी। और लोग पागल हमसे ये सवाल करते हैं, कुछ अपने कुछ बेगाने, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ अकलमंद कुछ दीवाने, कुछ पागल कुछ सियाने, कुछ जाने कुछ अनजाने, वो खामखा उन्होंने ऐबजोई करनी जो होती है, वो कहेंगे जनाब ये सिपाही साहबा वालों ने काफिर काफिर के नारे लगाकर कितने शिया मुसलमान कर लिए हैं। कहते हैं ना, सारे बोलो, कितने शिया मुसलमान कर लिए हैं। तो मैं कहता हूं, पहले तो तादीस पे नेमत के तौर पे कहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाबिर में तो पता नहीं कितने बेशुमार किए होंगे। मैं तो उलमाए देवबंद का एक अदना सा रजाकार और शागिर्द हूं। इस वक्त तक मेरे हाथ पर 10 पढ़े लिखे नौजवान शिया मुसलमान हो चुके हैं। और 2 साल पहले जामपुर की सरजमीन का वाकया है, शायद मेरे दोस्तों ने कारकुनों ने खिलाफत रास्ता में भी पढ़ा होगा कि 18 जुल्हज्जा को शहादत उस्मान पर मैंने जामपुर शहर में चौक में जामा मस्जिद खुलफाए राशिदीन में शहादत उस्मान पे जब वहां पे तफसीली गुफ्तगू की, तो चंद शिया नौजवान
किसी होटल के बेंच पे बैठकर मेरी तकरीर सुन रहे थे। जो ही तकरीर खत्म हुई, तकरीर के बाद 5 नौजवान आए, पांचों ग्रेजुएट, बीए पास, पढ़े लिखे, और आकर कहने लगे, मौलाना साहब, हमें तो आज पता चला है कि हुसैन से बड़ा मजलूम भी दुनिया में कोई है। आज के बाद हम शीयत से तौबा ताइब होकर सिपाही साहबा की रुकनियत का फार्म भर करके सिपाही साहबा का ऐलान करते हैं। जाओ, जाकर मौलाना फैजुल हक उस्मानी सदर सिपाही साहबा जिला राजनपुर से पूछो कि आज तक जहां पर मजलिस हुआ करती थी, आप 2 साल से वहां पे मुतवातिर उनके घर में सिपाही साहबा का जलसा होता। और इसके अलावा 2 शिया नौजवान, वो भी पढ़े लिखे, अपने जतोई शहर में मैंने मुसलमान किए हैं। 3 शिया नौजवान सीतपुर में, जहां मैं जुमा पढ़ाता हूँ शाही मस्जिद में, वहां पे नौजवान शिया 3 मैंने मुसलमान किए हैं। ये तो है एक इल्जामी जवाब, लेकिन मैं असल बात करना चाहता था। ये भी इसलिए तादीस पे नेमत के तौर पे बताया ताकि उन जाहिलों का ये गिला भी दूर रहे कि जनाब कितने तुमने शिया मुसलमान कर दिए। लेकिन आमतौर पे सवाल होता है कि जनाब तुमने ये नारे लगाकर, तुमने ये सख्ती करके, तुमने ये तशद्दुद वाला लेजा अपनाकर कितने शिया सुन्नी कर लिए हैं और कितने तुमने शियों को मुसलमान कर लिया है। तो मैं कहता हूं ये तो वही पागलों वाला सवाल है कि अगर एक बस्ती में सैलाब आ जाए और उस सैलाब के दौरान कोई समाजी या रफाई वर्कर काम कर रहे होते हैं, लोगों के माल मवेशी और मकानात को बचाकर सामने बंद बांध रहे होते हैं, उनसे अगर जाकर कोई बेवकूफ पूछे कि जनाब तुमने इस सैलाब में कितने नए घर बनाए हैं, तो वो कहेगा, पागल के बच्चे, सैलाब जब आता है तो सैलाब में नए घर नहीं बनाए जाते, पुराने बचाए जाते हैं। वो हमने तो इस सैलाब के सामने बंद बांधा है। हमने अगर नए शिया सुन्नी नहीं किए तो कम से कम पुराने सुन्नियों को शिया होने से बचा दिया है। ये बात ठीक है या गलत है? हमने इस सैलाब के सामने बंद बांधा है, बंद। अगर तुम पूछो कि तुमने कितने नए घर बनाए, तो हम कहेंगे जब सैलाब आता है नए घर नहीं बनाए जाते, पुराने बचाए जाते हैं। हमने नए मुसलमान नहीं किए, लेकिन पुराने मुसलमानों को बचाया है। आओ, आज तुम्हें मैं दावत फिक्र देता हूं कि सिपाही साहबा की पॉलिसियों से इख्तिलाफ रखने वालों, आज हम में ये बड़ी गंदी रवश चल चुकी है। शायद मेरी बात किसी को तकलीफ दे, एडवांस माजरत कर लेता हूं। आज हम में ये बड़ी गंदी रवश पैदा हो चुकी है। तवज्जो करना, मेरी पूरी बात सुनना, बाद में रिएक्शन का इजहार करना। शुरू में ना नाराज हो जाना कि जो तबलीगी तवज्जो है, हाथ खड़ा करें जिनकी तवज्जो नहीं है। तवज्जो है, अब तो है। जो बेचारा, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, तवज्जो जरूर रखना। हमने ये एक बड़ी गंदी रस्म चल चुकी है और ये रवश हम में पैदा हो गई है उलमाए देवबंद में, देवबंदी और रजाकारों और कारकुनों में, कि जो बेचारा तबलीग में लगा हुआ है, अब उसकी कोशिश होगी कि सारी दुनिया तबलीग में आ जाए, बाकी सब काम छोड़ दो। चाहे काफिर जो भी दीन के सहाबा इकराम को, अज़वाज मुताहरात को भौंकता रहे, छोड़ दो। बस दोस्तों बुजुर्गों करीब करीब हो जाओ, नाराज नहीं होना, पूरी बात सुनना बाद में। और जो सियासत के मैदान में होगा जमीयत उलमा इस्लाम की शक्ल में, वो सबको अगवा करना चाहेगा, सारे कारकुनों को, वो तबलीग वालों को भी, जिहाद वालों को भी, सिपाह वालों को भी, कहेगा छोड़ो सब काम, इधर आओ, निजाम बदले, पूरा काम बदल जाएगा। और जो कोई जिहाद वाला मुजाहिद होगा वो भी यही करेगा कि जनाब सब काम दूसरे नंबर पर, आओ पहले जिहाद पे इकट्ठे हो जाओ, जिहाद करें, बाकी सारे काम छोड़ दो। और जो सिपाह वाला होगा वो भी कहेगा, जी तबलीग वाले ढीले ढाले हैं, छोड़ो जी, तबलीग में क्या रखा है, इधर आओ सिपाही साहबा का झंडा उठाओ। जमीयत और सियासत में क्या रखा है, इधर आओ सिपाह का झंडा उठाओ। जिहाद में क्या रखा है, इधर आओ सिपाह का झंडा उठाओ। मैं कहता हूं जो भी ये बात करते हैं वो सब गलत है या नहीं? पूरी दुनिया तबलीग पे इकट्ठी नहीं हो सकती, पूरी दुनिया जिहाद पे इकट्ठी नहीं हो सकती, पूरी दुनिया फिरके बातला के मुकाबले में इकट्ठी नहीं हो सकती, पूरी दुनिया जालिम हुक्मरानों के मुकाबले में सियासत के मैदान में इकट्ठी नहीं हो सकती। अल्लाह के बंदो, जो जहां काम कर रहा है, काम अपनी जगह पे करे। तवज्जो मेरी बात का खुलासा, काम अपनी जगह पे करे। तबलीग वाला अपनी तबलीग का काम करे, लेकिन तहज्जुद की दुआओं में सिपाह और जिहाद वालों को भी याद रखे। जिहाद वाला तलवार उठाकर जिहाद कुफ्र से करे, लेकिन तहज्जुद की दुआओं में तबलीग, जमीयत और सिपाह वालों को भी याद रखे। सिपाह वाला काम फिरके बातला के मुकाबले का करे, लेकिन नमाज और तहज्जुद की दुआओं में जमीयत, तबलीग और जिहाद वालों को दुआओं में याद रखे। तो जब तुम एक दूसरे के लिए दुआओं करोगे, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचोगे। तबलीग वालों के हाथ अगर कोई सिपाह वाला चढ़ जाए तो वो उसको खींचने की कोशिश करेंगे कि उधर से इधर हो जाए, और अगर सिपाह वालों के हाथ में कोई तबलीग वाला चढ़ जाए तो ये भी कोशिश करेंगे कि छोड़ यार उधर से इधर हो जाओ। नहीं, मैं कहता हूं आज से अपना एक ज़हन बना लो कि जो दीन के जिस शोबे में काम कर रहा है उसको करने दो। क्यों?
کہ ہم نے دین کی ساری سرحدوں کا محافظ بننا ہے. تبلیغ بھی دین کی ایک سرحد ہے, جہاد بھی دین کی ایک سرحد ہے, فرق باطلہ کا مقابلہ بھی دین کی ایک سرحد ہے, ظالم اور جابر حکمرانوں کا مقابلہ کر کے سیاست میں آنا بھی دین کی ایک سرحد ہے. ہم جب ساری سرحدوں کی حفاظت کریں گے تو دین محفوظ رہے گا. اور اگر ہم چاہیں کہ ہم سب کو جمع کر کے ایک سرحد کے ایک کونے پہ کھڑے ہو جائیں, باقی سرحدیں ننگی پڑی رہیں, تو ہم دین کی حفاظت کبھی نہیں کر سکتے. تبلیغ والوں تم تبلیغ کرتے رہو, سپاہ والوں تم فرق باطلہ کا مقابلہ کرتے رہو, جمعیت والوں تم ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے حق کا جملہ کہتے رہو, جہاد والوں تم کافروں سے جہاد کرتے رہو. لیکن تہجد کی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد کرو. جب تم میں اتفاق اور اتحاد آئے گا تو خدا کی رحمت بھی اترے گی, خدا کی نصرت بھی اترے گی. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک دوسرے کا گلا کرتے رہیں, ایک دوسرے کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے رہیں. جی موقف تو اچھا ہے, پالیسی ٹھیک نہیں ہے. کیوں پالیسی ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ ہتھکڑی لگتی ہے. پالیسی مانو گے تو پھر بیڑی علی شیر حیدری کی طرح پہننی پڑے گی. پالیسی مانو گے تو پھر ضیاء الرحمان فاروقی کی طرح بموں میں قدم رکھنے پڑیں گے. پالیسی اگر مانو گے تو پھر اعظم طارق کی طرح جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے گا. دیوبندیوں اپنے اکابر کی تعریف کو داغدار مت ہونے دو. تمہارے اکابر تو وہ تھے کہ جنہوں نے گردنیں کٹائی مگر گردن جھکائی نہیں. آج میں بھی تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں, اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتے رہو, لیکن سب کے لیے دعائیں کرتے رہو. پھر خدا کی نصرت اور خدا کی رحمت شامل حال ہوگی اور پاکستان میں اسلام کا انقلاب مقدر ہوگا. دعا کرو کہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب زدنا علما. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفار. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلا. یا اللہ جتنے حضرات سخت گرمی میں تیرے دین کے جلسے میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جن حضرات نے اس جلسے کا انتظام انسرام کیا ہے اللہ ان کے علم میں عمل میں رزق میں عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی سعادت نصیب فرما. اللہم احینا سعیدا وامتنا شہیدا. یا اللہ علماء دیوبند کی تمام مذہبی جماعتوں کو اپنے مشن میں کامیاب و کامران فرما. یا اللہ تبلیغی جماعت کو اپنے مشن میں کامیاب فرما. یا اللہ مجلس ختم نبوت کو اپنے مشن میں کامیاب فرما. یا اللہ تنظیم اہل سنت کو اپنے مشن میں کامیاب فرما. یا اللہ مجلس علماء اہل سنت کو اپنے مشن میں کامیاب فرما. یا اللہ سپاہ صحابہ کو اپنے مشن میں کامیاب فرما. یا اللہ جمعیت علماء اسلام کو اپنے